سوچ میں پڑ گیا بولوں تو کیا بولوں. اگر بولتا ہوں کہ نہیں دکھ رہا ہے تو سارا مجمع کہے گا کہ اس کا مطلب یہ کہ صحیح نسب والا صحیح نسل والا نہیں ہے, اس کے باپ کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے, کیا کرتا نہیں کرتا. کہا کہ ہاں بالکل کلیئر مکہ بھی دکھ رہا, مدینہ بھی دکھ رہا, یہ تو سیدھا مکہ اور ادھر دائیں طرف مدینہ دکھ رہا ہے. بادشاہ بھی حیران کہ یار یہ تو غضب ہے. اب بادشاہ خوشی کے مارے انعام دینا چاہا کہ نہیں اس کو انعام بھی تو ملنا چاہیے. جس ٹوپی کا یہ کمال ہو, جس کی یہ خصوصیت ہو, جس کے اندر یہ خاصیت ہو, تو بھائی ظاہر سی بات ہے کچھ انعام ملنا چاہیے. جو سفر ہزاروں کا ہوتا ہے, جو سفر کئی پریشانیوں کے بعد میسر آتا ہے, اگر یہاں بیٹھے بیٹھے وہ ساری چیزیں دکھنے کو مل جاتی ہے تو انعام تو ملنا چاہیے, اس کا حق بنتا ہے. تو بادشاہ نے انعام دینے کا اعلان کیا. تو مداری نے کہا کہ بادشاہ سلامت, عالی جہاں جلدی نہ کیجیے, صبر کیجئے, آپ انعام مت دیجئے, آپ بھی ایک بار دیکھ لیجئے نا پہن کے, آپ بھی ایک بار ٹرائی کر لیجئے, کہیں آپ کا انعام ضائع نہ ہو جائے. تو بادشاہ نے سوچا کہ اچھا جی چلو پہن لیتے, اچھی بات ہے, تاکہ ہم انعام دیں گے تو یہ تصدیق ہو جائے گی. چندہ دیتے تو کہا سچ میں مدرسہ کون چلاتے فلاں, اچھا جہاں فلاں صاحب کو جانتا ہوں, ٹھیک ہے اس کو چندہ ملنا چاہیے. تو چلو ٹھیک ہے میں ٹوپی پہن لیتا ہوں, پھر دیکھتا ہوں مکہ اور مدینہ دکھتا ہے یا نہیں دکھتا ہے. اب جب بیچارہ ٹوپی جو پہنا بادشاہ سلامت, تو وہ ٹوپی کہاں سے مکہ دکھتا کہاں سے مدینہ دکھتا. اب بادشاہ اس سوچ میں پڑا مکہ بھی نہیں دکھتا ہے مدینہ بھی نہیں دکھتا ہے, اگر میں یہ کہوں کہ نہیں اس میں تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے تو سارے لوگ کہیں گے کہ وزیر صحیح نسل والا ہے اور بادشاہ حرامی ہے. اب یہ بادشاہ بیچارہ کیا کرتا نہیں کرتا. اس نے کہا کہ ارے تم تو مکہ مدینہ ہی دیکھے نا, یہ دیکھو سیدھا مجھے جنت بھی نظر آ رہی ہے, مکہ بھی مدینہ بھی سیدھا جنت, ایک قدم آگے بڑھ کے مجھے نظر آ رہا ہے. بہرحال ٹوپی اتر گئی. اب بہت سارا انعام دیا گیا, بہت سارا انعام بٹور لیا, چلا گیا, ٹوپی پہنا کے چلا گیا. تو یہیں سے نکلا ہے ٹوپی پہنا کے چلا جانا. چند دن کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا ادھر آؤ, سچ بتاؤ یہاں پر میرے اور تیرے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہے, سچ بتانا تم جو اس دن ٹوپی پہنے تھے سارے لوگوں کے سامنے, وہ جو مداری والا ٹوپی پہنایا تھا, سچ بتاؤ تم کو مکہ مدینہ دکھا تھا. اب یہ سوچا وزیر اگر میں بتا دوں کہ نہیں دکھا تھا تو کہے گا کہ جھوٹ پھر بولا, مجھے پھنسایا, قتل کر دے گا. تو اس وزیر نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت عالی جہاں آپ نے جو دیکھا وہی میں بھی دیکھا ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ ارے میں تو کچھ بھی نہیں دیکھا. تو کہا حضرت وہی یار میرا بھی ہے. یہ ٹوپی پہن کے چلے گئے. جانتے ہیں نا سارے لوگ, اگر آپ لوگ دل جمی کے ساتھ سنیں گے, حضرت مولانا ابو طالب رحمانی بھی آئیں گے, ان کے بعد بھی سنیں گے, تو پھر آپ لوگ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے. اگر دل جمی سے نہیں سنیں گے میں بھی ٹوپی پہنا کے بھاگ جاؤں گا. اب آپ فیصلہ آپ کریں گے, ٹوپی آپ کو پہننا ہے یا مجھے پہننا ہے. بہرحال مجھے حکم ملا ہے اور ضرورت بھی ہے کہ مجھے تعمیر مسجد پر انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت پر 2-4 باتیں گزارش آپ کے سامنے رکھنی ہے. آپ کے سامنے میں نے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی ہے, الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ قرآن پاک کے سورہ بقرہ کی آیت ہے. اور آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث بھی پیش کی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. میں آپ کے بھی زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا چونکہ مجھے اور آپ کو سب کو بڑے مقرر خصوصی مقرر کو سننا دیکھنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی یہ روایت نقل کرتے ہیں جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے, اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ, کہ جب انسان مر جاتا ہے سانس بند ہو جاتی ہے, آنکھ بند ہو جاتی ہے, دنیا والے زمین میں دفن کر دیتے ہیں, قبرستان کے حوالے کر دیتے ہیں, سارے اس کے اعمال بند ہو جاتے ہیں. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ, انسان کے مرنے کے بعد, سانس کے ختم ہو جانے کے بعد, آنکھ کے بند ہو جانے کے بعد, ملک الموت کے ملاقات کے بعد اس کے سارے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اب کوئی ثواب اسے ملنے والا نہیں, کوئی گناہ ملنے
करने वाला नहीं। यानी कि इंसान के आमाल के जितने दरवाजे हो सकते हैं, जितनी खिड़कियां हो सकती है, जितने रास्ते हो सकते हैं, वो सब के सब बंद हो जाते हैं इल्ला, लेकिन यहां से 3 दरवाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। मैं मिसाल से समझाऊंगा कि जब इंसान मर गया, इंसान की आंखें बंद हो गई, सांस रुक गई, उसके आमाल बंद हो गए। अब जब दुनिया वाले उसे कब्रिस्तान में ले जाते हैं, कब्र में दफन कर देते हैं, तो 3 चीजें उसके साथ जाती है। एक चीज है उसके आमाल, एक चीज है उसके रिश्तेदार, एक चीज है उसकी दौलत। उसके रिश्तेदार, उसकी दौलत, ये दोनों चीजें वापस आती हैं। एक चीज उसके साथ रहती है जो उसने किया, चाहे वो आमाल बुरा हो या अच्छा हो, ये उसके साथ रहते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 ऐसे दरवाजे बताए हैं कि अगर इंसान की रूह, इंसान की आंखें बंद होने के बाद फिर भी 3 ऐसे दरवाजे हैं कि जहां पर उसे सवाब मिलता रहता है। इंसान जैसे ही मरा, उसके आमाल के सामने जो दरवाजा है, उस दरवाजे पे ताला लग गया है, कुफल लग गया है, कोई आमाल उस तक पहुंच नहीं सकता है। लेकिन 3 दरवाजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को बता करके गए हैं। 3 दरवाजे ऐसे हैं, अगर इंसान इन 3 दरवाजे को जान ले, इन 3 दरवाजे को इस्तेमाल कर ले, इन 3 दरवाजे को खोल के चले जाए, तो आखिर वक्त तक उसे सवाब मिलता रहे। वो क्या है 3 दरवाजे? इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, एक है सदक़ा जारिया। इस सदक़ा जारिया क्या है, वज़ाहत आएगी। एक दूसरा दरवाजा है औ इल्मिन युंतफ़अ बिही, या ऐसा इल्म छोड़ कर गया, पढ़ा कर गया, सिखा कर गया, किताब लिख कर गया, किताब बांट कर गया, जिसकी वजह से, जिसके जरिए से सारी इंसानियत मखलूक फायदा उठाती है, इल्म हासिल करती है। ये दूसरा दरवाजा। एक तीसरा दरवाजा औ वलदिन सालिहिन यदउ लह, या ऐसी नेक औलाद छोड़ कर गया है जो उसके बाद उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती है। ये 3 ऐसे दरवाजे हैं कि जहां पर उसे इन 3 दरवाजों के वास्ते से सवाब मिलते रहते हैं। आप सब ने फ़ज़ाइल आमाल नाम सुना भी होगा, किताब आपने देखा भी होगा। इस आयत के ज़िम्न में हज़रत शेख ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने 3 वाक़या नक़ल किया इस हदीस के ज़ेल में। मैं उस 3 वाक़ये को हदीस समझाने के लिए पेश करता हूँ, यानी सपोर्ट लेता हूँ इस 3 वाक़ये का। हज़रत शेख ज़करिया नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने एक वाक़या लिखा इसके ज़ेल में कि एक बंदा था जिसका नाम हजरत सालेह, बाज़ किताबों में रज़ी अल्लाह ताला और बाद में रहमतुल्लाह अलैह, बहरहाल एक बड़े अल्लाह वाले थे, सालेह इनका नाम था। ये जुमा की रात को तहज्जुद के लिए जामे मस्जिद जाया करते थे। तो रात को जब ये तहज्जुद के लिए जामे मस्जिद जा रहे थे, तो रास्ते में एक कब्रिस्तान आया और वहाँ पर ये सोच कर बैठ गए कि मुसलमानों का कब्रिस्तान है, 2-4 मिनट बैठ के थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। जैसे ही वो कब्रिस्तान में एक कब्र पर सहारा लगा कर बैठते हैं, तो लिखा है हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को कि हज़रत सालेह ने जिस तरह उस कब्र पर टेक लगाकर, सहारा लगाकर लेट गए, तो लिखा हज़रत आँख लग गई। अब जब आँख लगती है तो वो देखते ही है कि अचानक ख्वाब, आग जब लग गई तो ख्वाब देखा उन्होंने कि अचानक सारी कब्रें शक हो गई, फट गई, और उन कब्रों से जितने मुर्दे थे वो मुर्दे निकल कर चलने लगे, घूमने लगे। सारे मुर्दे अच्छे पोशाक में, अच्छे लिबास में थे, और जब कब्र शक होने के बाद सारे मुर्दे मुंतशिर हो गए, और मुंतशिर होने के बाद कुछ चुनने लगे, कुछ बीछने लगे, और देखते ही देखते कुछ ही लम्हात में आसमानों से चंद फरिश्ते आते दस्तरखान लेकर, जिसमें हजारें नियामतें हैं, और हर कब्र के लोग, हर मुर्दे एक एक दस्तरखान लेता है और सीधा कब्रिस्तान चला जाता है। हजरत सालेह ने बयान किया है कि मैंने उस ख्वाब में देखा कि एक बंदा ऐसा भी उस कब्र से निकला जो बिल्कुल फटे पुराने कपड़े में था, और जिसके बदन पर गर्दो गुबार थे, और वो बंदा जब निकला, मायूस निकला, कब्र से निकल के एक कोने में जाके बैठ गया। और जब सारे मुर्दे अपना दस्तरखान लेकर के कब्रों में चले गए, अपने बिलों में घुस गए, अपने घरों में चले गए, तो वो नौजवान जो फटे पुराने कपड़े में था, जो अच्छे पोशाक और अच्छे लिबास में नहीं था, हजरत ने लिखा है वाकया कि वो नौजवान निकला था मायूस होकर, निकला था पुराने कपड़े में, और जब
दस्तरखान आया, उसमें भी उसे कोई हाथ कुछ नहीं लगी, महरूमी हाथ लगी और खाली हाथ दोबारा अपनी कब्र में चला गया। उसके बाद फिर देखते ही देखते, ये सारा वाकया फज़ाइल अमाल जिल्द 2 में मौजूद है। फिर देखते ही देखते हैं कि फिर सारी कब्रें अचानक शक होती, फटती है, फिर इसी तरह मुर्दे निकलते हैं। फिर वो नौजवान जो अकेला निकला था और फटे पुराने कपड़े में और बगैर किसी कुछ लिए खाली हाथ वापस चला गया। तो हजरत ने पूछा उस नौजवान से, ख्वाब की बात है, नौजवान से पूछा कि भाई क्या बात है, वजह क्या है? सारे मुर्दे कुछ न कुछ लेके जाते हैं, कुछ न कुछ चुनते हैं, तू ना कुछ चुनता है और ना कुछ लेता है, खाली हाथ निकलता है, खाली हाथ जाता है, वजह क्या है? तो वो नौजवान रोकर नकल किया, अपना वाकया बताया कि बात दरअसल ये है, ये जो जितने लोग कब्र से निकलते हैं और कुछ चुनते हैं और आसमान से फरिश्ते आते हैं और नेमतों को लेकर चले जाते हैं, ये वो चीजें हैं जो उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त अहबाब, उनके वालिदैन, उनके माँ बाप, उनके मजलिस में बैठने वाले लोग इनके नाम पे सदका करते हैं, इनके नाम पे रुपया पैसा खर्च करते हैं, इनके नाम पे कुरान पढ़ के बख्शते हैं, इनके नाम पे अपनी नफली इबादतों को इनके लिए सदका करते हैं। तो रोजाना ये लोग यूं इसी तरह से आमाल लिया करते हैं, लेकिन मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे नाम पर कोई खर्च करने वाला नहीं है, मेरे नाम पर कोई रुपया लुटाने वाला नहीं है, मेरे लिए कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। हाँ, एक मेरी माँ है, जब मेरा इंतकाल हुआ मेरी माँ ने मुझे कब्रिस्तान के हवाले किया और चूंकि वो अभी जवान थी, जिसकी वजह से उसने दूसरी शादी कर ली, बाप भी नहीं था, जिसकी वजह से वो माँ भी मुझे भूल चुकी है। ए बुजुर्ग, अगर तुम मेरे लिए खैर खा हो, मेरे लिए हमदर्द हो, मेरे लिए अगर अपने दिल में कुछ दर्द, कुछ कुड़न, कुछ चुभन महसूस करते हो, तो एक दरख्वास्त है कि मेरी उस माँ से एक दरख्वास्त कर देना कि तुम्हारा बेटा रोजाना खाली हाथ निकलता है, खाली हाथ वापस जाता है। अगर तू उस बेटे के लिए 1 रुपये सदका कर दे, उस बेटे के लिए 1 आयत पढ़ के बख्श दे, उस बेटे के लिए 2 रकात नफिल पढ़ के बख्श दे, तो इसका भी कुछ बन जाएगा। चुनांचे लिखा है हजरत ने वाकया कि वो हजरत आते हैं और उसकी वालदा से कहते हैं, बताओ तुम्हारी कोई औलाद थी या नहीं? वो वालदा कहती है, हाँ एक औलाद तो थी जिसका इंतकाल हो चुका है। तो हजरत ने सारा माजरा, सारा वाकया उसकी माँ को बयान किया। तो लिखा है हजरत ने कितनी अपनी किताब में इस वाकये को कि उस माँ ने रोते हुए उस हजरत के हवाले चंद रुपये, चंद दीनार, चंद दिरहम हवाले किए और कहा कि ये रुपया, ये पैसा, ये दीनार मेरे उस बेटे के नाम पे जिसको चाहे दे दो, मस्जिद में लगा दो, मदरसे में लगा दो, गरीब मिस्किन यतीम को दे देना। चुनांचे जब दूसरी मर्तबा वो ख्वाब देखते हैं तो देखते ये हैं कि जिस तरह से दूसरे लोग खुश खुर्रम कब्रों से निकलते हैं, खुश खुर्रम इनाम लेके कब्रों के अंदर जाते हैं, इसी तरह से वो नौजवान जो कल मायूस निकला करता था, वो नौजवान जो कल रोया हुआ आता था, आज वो भी खुश खुर्रम निकलता है और खुश खुर्रम जाता है। ये है औ वलद औ मिन सदक़तिन जारिया, सदक़ा जारिया।